ساری سبسڈی ختم ہوئی تو پیٹرول بہت مہنگا ہوگا۔ اوگرا نے ورکنگ پیپر تیار کر لیا۔ 16 مئی سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 31 سے 85 روپے لیٹر اضافے کا امکان ہے۔ حکومت اس وقت پیٹرول پر 29 روپے 30 پیسے اور ڈیزل پر 73 روپے سبسڈی دے رہی ہے۔ پیٹرول کی قیمت بڑھے گی یا نہیں، فیصلہ آج ہوگا۔ ساری سبسڈی ختم ہوئی تو پیٹرول بہت مہنگا ہوگا۔ اوگرا نے ورکنگ پیپر تیار کر لیا۔ 16 مئی سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 31 سے 85 روپے لیٹر اضافے کا امکان ہے۔ حکومت اس وقت پیٹرول پر 29 روپے 30 پیسے اور ڈیزل پر 73 روپے سبسڈی دے رہی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، 16 مئی سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 31 سے 85 روپے لیٹر اضافے کا امکان ہے۔ حکومت اس وقت پیٹرول پر 29 روپے 30 پیسے اور ڈیزل پر 73 روپے سبسڈی دے رہی ہے۔ پیٹرول کی قیمت بڑھے گی یا نہیں، فیصلہ آج ہوگا۔ ساری سبسڈی ختم ہوئی تو پیٹرول بہت مہنگا ہوگا۔ اوگرا نے ورکنگ پیپر تیار کر لیا۔ 16 مئی سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 31 سے 85 روپے لیٹر اضافے کا امکان۔ حکومت اس وقت پیٹرول پر 29 روپے 30 پیسے اور ڈیزل پر 73 روپے سبسڈی دے رہی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے کا امکان، لیا میں پمپ مالکان نے پیٹرول اور ڈیزل کی فراہمی بند کر دی۔ کوٹ سلطان، جمن شاہ سمیت مختلف علاقوں میں پیٹرول پمپس بند۔ پیٹرول ڈیزل نہ ملنے کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ انتظامیہ پمپ مالکان کے خلاف کارروائی کرنے سے گریزاں۔ ڈپٹی کمشنر لیا شہباز حسین نوٹس لیں، ایسا کہنا ہے شہریوں کا۔ پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے کا امکان، لیا میں پمپ مالکان نے پیٹرول اور ڈیزل کی فراہمی بند کر دی۔ کوٹ سلطان، جمن شاہ سمیت مختلف علاقوں میں پیٹرول پمپس بند۔ پیٹرول اور ڈیزل نہ ملنے کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات۔ انتظامیہ پمپ مالکان کے خلاف کارروائی کرنے سے گریزاں ہے۔ ڈپٹی کمشنر لیا شہباز حسین نوٹس لیں، ایسا مطالبہ کیا جا رہا ہے شہریوں کی جانب سے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں زاہد سرفراز سے۔ جی زاہد، بتائیے۔ جی بالکل، 16 مئی سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے امکان کی وجہ سے لیا کے جو پیٹرول پمپ مالکان ہیں انہوں نے بھی اپنی اجارہ داری قائم کرتے ہوئے لیا کے مختلف پیٹرول پمپ مالکانوں نے پیٹرول پمپ بند کر دیے ہیں۔ وہاں پہ پیٹرول اور ڈیزل کی جو فروخت ہے اس کو بند کر دیا، جس وجہ سے جو شہری ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس وجہ سے بات کی تو نہریں بند ہونے کی وجہ سے جو کپاس اور دیگر فصلات ہیں ان کو پانی لگانے کے لیے جو کسان ہیں، جو کاشتکار حضرات ہیں جن کو ڈیزل کی ضرورت تھی، ان کو ڈیزل نہیں ملنے کی وجہ سے ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جبکہ اتوار کے دن جو ہے جہاں جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کے ساتھ شہری جن میں مختلف سفر کرنا تھا ان کو بھی آج شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، کیونکہ نہ تو ڈیزل فراہم کی جا رہا ہے نہ ہی پیٹرول فراہم کی جا رہا ہے۔ اس وجہ سے ڈپٹی کمشنر لیا شہباز حسین سے شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جن پیٹرول مالکان نے جو عارضی طور پر پیٹرول پمپ کی پیٹرول اور ڈیزل کی فراہمی کو بند کیا ہو تو ان کے خلاف فوری کارروائی کی جائے۔ فوری کارروائی کی جائے۔ زاہد سرفراز، شکریہ، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ رحیم یار خان میں لیمو کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ اور شارٹیج۔ لیمو 200 روپے فی کلو مہنگا ہو گیا۔ لیمو 800 سے 1000 روپے کلو میں فروخت ہونے لگا ہے۔ مزید جانتے ہیں عامر بھٹی سے۔ جی عامر، بتائیے۔ جی بالکل، رحیم یار خان میں لیمو کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ لیمو کی فی کلو قیمت میں 200 روپے کا اضافہ ہوا۔ لیمو جو کہ پہلے 800 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہوتا تھا، 200 روپے فی کلو کے اضافے کے بعد اب 1000 روپے کلو میں فروخت ہونے لگا ہے۔ شہری جو ہیں وہ مایوس بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہے، کیونکہ شدید گرمی اور اس گرمی سے بچنے کے لیے لیمو جو ہوتا ہے مشروب میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لیمو یہاں پر موجود بھی نہیں اور اس کے ساتھ اس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ دکاندار ہمارے موجود، ان سے جانتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے۔ ایک تو لیمو ہے نہیں، ٹھیک ہے، اگر کہیں پہ مل بھی جاتا تو 1000 میں مل جاتا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہے کہ کیوں لیمو مہنگا ہو رہا ہے اور جو شہری ہیں انہیں کن مشکلات کا سامنا ہے، اور آپ کے پاس لیمو کیوں نہیں ہے؟ اصل میں جب نیمبو کی توڑائی شروع ہوئی ہے نا تو اس وقت اس کو توڑنے کا موسم نہیں تھا، اس کی وجہ سے اس کو توڑ لیا گیا۔ اس کے سائز میں کمی تھی، سائز کم تھا اس کی پیداوار میں کمی تھی۔ تقریباً وہ 2 مہینے کے بعد اگر اس کی توڑائی ہوتی تو پھر جا کے وہ مارکیٹ کے حساب سے پورا ہو سکتا تھا۔ اب ہمارا علاقہ ایک ہے اور وہاں سے پورے پاکستان میں نیمبو جاتا ہے، تو اسی وجہ سے دوسرے شہروں والے جو ہیں وہ ہم سے مہنگا خریدنے کو گریز نہیں کرتے، وہ خرید لیتے ہیں۔ تو لوکل منڈی میں یہ ہماری لوکل سبزی ہے، لوکل چیز ہے، ہم لوگ اس کے اوپر زیادہ فوکس نہیں کرتے، کیونکہ یہ آنا ہی ہوتا ہے نا۔ ادھر ہمارے 7 باغات ہیں، صادق آباد کے ایریے سے بہت زیادہ نیمبو لگا ہوا ہے، تو موسم کے حساب سے اس میں مسئلہ بن رہا ہے۔ جب اس کی توڑائی کا موسم تھا تو
उस वक़्त इसको नहीं तोड़ना चाहिए था, लेकिन रमज़ान आ गया तो रमज़ान में नींबू की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो उसको तोड़ लिया गया। अब पीछे भी नींबू, बागों में भी नींबू कम है और मार्केट में इसी वजह से नींबू कम है। हम ख़रीद के लाते हैं तो उस रेट पे हमारा बिकता नहीं है जिस रेट पे हमने ख़रीदा होता है, हमें लॉस होता है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि इसको ना ख़रीदें, लेकिन ख़रीदना इसलिए पड़ता है कि हर गाहक की ये ज़रूरत है और हर गाहक हमसे नींबू मांगता है। तो इसी वजह से हम लोग इसको आज भी ख़रीद के नहीं लाए। आज भी वहाँ पे 4,500 रुपये 5 किलो का रेट था। तो उसी हिसाब से अगर हमारा वो 1,000 रुपये किलो बिके तो हमें कुछ मिलता है उसमें से, वरना 1,000 रुपये किलो तक नींबू हो चुका है। उसको दुकानदार भी नहीं खरीद रहे कि इनकी जो कस्टमर्स होते हैं उनके साथ बहस भी होती है और मजीद इनको जो है वो महंगा भी पड़ जाता है। दूसरी जानिब शहरी परेशान है कि मशरूब बनाने के लिए नींबू, इसके साथ साथ शहरी परेशान है। आमिर कोई भट्टी, भी शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। गरीब आवाम की मुश्किलात कम न हो सकें, शदीद गर्मी में भी अंडों की कीमत में इजाफा, अंडे 150 रुपए फी दर्जन हो गए। महंगाई को ब्रेक ना लग सकी, शदीद गर्मी में भी अंडों की कीमत में इजाफा हो गया। फी दर्जन अंडे 120 से बढ़कर 150 रुपए के हो गए। अंडे की फी पेटी की कीमत 3400 से बढ़कर 3900 हो गई। बढ़ती हुई महंगाई से शहरी परेशान दिखाई दिए। हमजा शहबाज से अपील करते हैं कि अंडे की कीमतों में इजाफा हुआ है, इनको जो है ना कम किया जाए। पिछले दिनों 100 रुपये दर्जन थे, अब डायरेक्ट 50 रुपये दर्जन बढ़ गए हैं और काफ़ी सारी चीज़ों में इजाफा हुआ है। मुर्गी का गोश्त में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है, इन चीजों में कमी की जाए। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना था कि गर्मियों में अंडों का रेट 80 से 100 रुपए फी दर्जन होता है, अब 150 रुपए पर पहुंच गया। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई से जीना मुश्किल हो गया है। रमजान में तकरीबन 100 रुपए दर्जन, 120 रुपए दर्जन, 110 रुपए दर्जन था और जैसे ही ईद आई ये हर दफा थोड़ा बढ़ाते थे, लेकिन इस दफा कोई लिमिट नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। जैसे आप मुर्गी का गोश्त देख लें, उसका रेट 400-500 रुपए गया हुआ है। कोई ना मुल्क का हाल नहीं है इस टाइम। आवाम को रिलीफ देने के लिए शहरी और ताजरों ने नई हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के हमरा सुहेब गुरमानी, रोही, मुल्तान। मुल्तान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग मामूल बन गई। कारोबारी अफराद लोड शेडिंग के बायस परेशान, शहरियों और कारोबारी अफराद का लोड शेडिंग पर काबू पाने का मुतालबा। मजीद शहरियों का क्या कहना है जानते हैं इब्राहिम खान से। जी इब्राहिम बताइए। जी बिल्कुल, अब बात करें मुल्तान शहर में लोड शेडिंग की सूरत हाल के हवाले से, तो अब भी जो है मुल्तान के कई इलाके ऐसे हैं जिनमें रेगुलर बेसिस पर जो है लोड शेडिंग हो रही है। इसी तरह से बात करें कारोबारी लिहाज से, तो वो लोड शेडिंग जो है कारोबार भी कई लोगों का जो है वो इफेक्ट कर रही है। अब बात करते हैं यहाँ पर मौजूद है नंबर प्लेट्स की शॉप पर, जिनका कारोबार ही डिपेंड बिजली पर करता है। बिजली होगी तो उनका कारोबार चलेगा। कुछ ग्राहक हमारे साथ मौजूद है। भाईजान आप बताइएगा कब से आए हुए हैं और लाइट ना होने की से क्या? ये मेरा तीसरा चक्कर है, लाइट तो सुबह से भी नहीं है और अब देखो मेरा नंबर प्लेट बेचारे देर भी हो रही है, लाइट भी नहीं है। अब इसके बारे में क्या कह सकते हैं, हुकूमत जो आई है अल्लाह ही जानता है। जो पहले थी वो चलो कुछ बेहतर तो थी, लोड शेडिंग के मामले में काफ़ी बेहतर थी। अब तो यकीन करें अब तो जलील हो रहा बंदा इस काम में। जी आप बताएं कितनी लोड शेडिंग रोजाना के तौर पर जब मामूली हो गई है? रोजाना की आती है और जाती है, 1 घंटा आती है, 2 घंटे गायब हो जाती है। बड़े परेशान है, देखो कारोबार है नहीं, पहले भी बंदा परेशान है, लाइट की वजह से और भी परेशान है। लाइट नहीं होती उस टाइम में वो कारोबार बिल्कुल बंद हो जाता है। कारोबार भी लाइट नहीं होती, कारोबार बिल्कुल बंद हो जाता है। आवाम बड़ी परेशान है। आवाम जो है लोड शेडिंग के हवाले से परेशान है क्योंकि अब ये रूटीन बनती जा रही है, रूटीन का हिस्सा बन गया है। खासतौर पर मई के शुरू से जो है काफ़ी ज़्यादा होने लग गई है। मुल्तान के कई इलाकों में मुतालबा किया जा रहा है कि लोड शेडिंग पर जो है इसको काबू पाया जाए, इसको जो है कंट्रोल किया जाए ताकि परेशानी भी ना हो लोगों को। भी आप हमें आगाह करे थे। मैपको टीमों का बिजली चोरों के खिलाफ जनूबी पंजाब भर में ऑपरेशन। एक रोज में 103 सार्फिन को बिजली चोरी करते हुए पकड़ लिया। 1,99,000 यूनिट चोरी करने पर 26,95,000 रुपए जुर्माना किया गया। मुल्तान सर्कल में 11 बिजली चोरों को 3,07,260 रुपए जुर्माना। डीजी खान सर्कल में 17 बिजली चोरों को 2,32,886 रुपए जुर्माना किया गया। बहावलपुर सर्कल में 8 सार्फिन को 2,30,998 रुपए जुर्माना किया गया। रहीम यार खान सर्कल में 27 सार्फिन को 5,02,000 रुपए जुर्माना, जबकि बहावल नगर सर्कल में 2 बिजली चोरों को 32,000 रुपए जुर्माना किया गया। खानेवाल सर्कल में 10 सार्फिन को 6,40,800 रुपए जुर्माना आयद किया गया।
पंजाब हुकूमत की महंगाई में रिलीफ देने की तैयारियां, अवाम को खसूसी रिलीफ पैकेज देने के लिए सिफारिशात तैयार कर ली गई। वजीर आला हमजा शहबाज चंद रोज में चीफ मिनिस्टर रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगे। रिलीफ पैकेज में आटा, घी और चीनी सस्ते दामों फरोख्त की जाएगी। पंजाब में 1000 से ज्यादा फेयर प्राइस शॉप्स कायम की जाएंगी। फेयर प्राइस शॉप्स पर अशिया खुरोनो सस्ते दामों फराहम की जाएंगी। रिलीफ पैकेज की निगरानी वजीर आला पंजाब खुद करेंगे। अशिया की सस्ते दामों फराहमी का जायजा अरकान असम्बली लेंगे। रोजाना फेयर प्राइस शॉप्स की रिपोर्ट ऐवान वजीर आला को दी जाएगी। आपको अपडेट करें, पंजाब हुकूमत की महंगाई में रिलीफ देने की तैयारियां, अवाम को खसूसी रिलीफ पैकेज देने के लिए सिफारिशात तैयार। वजीर आला हमजा शहबाज चंद रोज में चीफ मिनिस्टर रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगे। मुस्लिम लीग नून 19 मई को सरगोदा कंपनी बाग में पावर शो करेगी। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगी। इस हवाले से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तैयारियों की तफसीलात जानते हैं शेख उस्मान से। जी उस्मान, बताइए। जी बिल्कुल, 19 मई को जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो सरगोदा के अंदर अपना पावर शो करेगी, जिसमें मरियम नवाज साहिबा जो है वो खिताब करेंगी। और इस वक्त इनकी तैयारियां जो है वो जलसे की वो जारी हैं। और मजीद जलसे का तैयारियों के हवाले से हम जानते हैं, हमारे साथ डिविजनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जो तारक कासमी साहब मौजूद हैं। कासमी साहब, ये बताइएगा कि यहाँ पर कितनी कुर्सियाँ लगाई जाएंगी और कितनी आवाम की उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर आवाम इकट्ठी होगी? यहाँ पर जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इंशाल्लाह 19 मई शाम 4 बजे जो है वो मोहतरमा मरियम नवाज साहबा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो दीगर सीनियर लीडरशिप है वो यहाँ सरगोदा तशरीफ ला रहे हैं। और इंशाल्लाह ये फ़कीदुल मिसाल जलसा होगा। ये पहले भी यहाँ पे जो जलसे होते रहे हैं सरगोदा में, वो बहुत ही ज़बरदस्त जलसे हुए हैं, क्योंकि सरगोदा जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ रहा है हमेशा से। और यहाँ के लोगों ने हमेशा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से, मियाँ शहबाज शरीफ साहब से दिली तौर पर मोहब्बत की है। और इंशाल्लाह इस मरतबा भी ये जलसा जो है वो फ़कीदुल मिसाल जलसा होगा। और इसके लिए तमाम तर तैयारियां जो हैं वो तेजी से जारी हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली जाएंगी। और जहां तक आपने बात की है कुर्सियों की, तो इंशाल्लाह 10,000 से ज़ायद कुर्सियां जो हैं वो यहाँ पे लगाई जा रही हैं इंशाल्लाह। और लोग जो हैं वो बड़े पुरजोश हैं, उनकी वो अपने कैद के इस्तकबाल के लिए, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा के इस्तकबाल के लिए भरपूर तरीके से उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल जो इंशाल्लाह करेगी। जी, जैसा कि आपने जाना कि इनका यही कहना था कि पंडाल के अंदर जो है 10,000 कुर्सियां जो है वो लगाई जाएंगी, लेकिन आवाम जो है वो इससे कई गुना ज्यादा वो इसमें शरीक होगी। और तैयारियां जो है वो इस वक्त मुकम्मल की जा रही हैं और मरियम नवाज साहिबा का मुकम्मल की जा रही हैं। शेख उस्मान, शुक्रिया, आप हमें आगाह करे थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का 20 मई को मुल्तान में पावर शो। जिले में जमात इस्लामी मुल्तान डॉक्टर सफदर हाशमी कहते हैं, इमरान खान जनूबी पंजाब सूबे का वादा पूरा करते तो इस्तकबाल करते। मजीद उनका क्या कहना है जानते हैं जुनेद अनवर से। जी जुनेद, बताइए। आज बिल्कुल तहरीक इंसाफ का 20 मई को मुल्तान में पावर शो। इमरान खान मुल्तान जलसे में खिताब करेंगे और उसके साथ साथ आज़ादी मार्च की तारीख भी देंगे। जबकि अपोजिशन जमातों की जानिब से इमरान खान पर तनकीद का सिलसिला जारी है। ज़िला अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर इकबाल हाशिम का कहना है कि इमरान खान अगर जनूबी पंजाब सूबे का वादा पूरा करते तो जनूबी पंजाब के अवाम उनका इस्तकबाल भी करती। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बात भी करेंगे। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं कि इमरान खान 20 मई को मुल्तान के अवाम का खून गरमाने आ रहे हैं, क्या कहेंगे? मुल्तान की जो सूरत हाल है इस वक्त बहुत बदतरीन सूरत हाल है। मेन रोड जितनी भी हैं, जो मैंने पहले भी हमने इस पर एहतजाज किया था, नवाबपुर रोड है और भी बहुत सारी रोड्स हैं जिनकी हालत नागुफ्ता बे है, कई सालों से बंद और उधड़ी पड़ी हैं। उसको ये कुछ नहीं कर सके। उल्टा इन्होंने हर महकमे के ऊपर अपने अफराद जो है वो तैनात कर दिए। किसी को चेयरमैन बना दिया, किसी को कुछ बना दिया। वासा MDA जिन्होंने सिवाय लूट मार के कोई काम नहीं किया। और आज हर महकमा जो है बदतरीन हालत में है। वासा की सूरत हाल ये है कि वासा के पास ना कोई फंड्स हैं, ना वो कोई काम कर रहे हैं। 500 के करीब फिल्ट्रेशन प्लांट मुल्तान के बंद पड़े हैं। महंगाई का जो तोहफा जो है इमरान खान साहब ने पूरी कौम को दिया, उससे जनूबी पंजाब के लोग शदीद तरीन मुतासिर हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि इस वक्त मुल्तान के अवाम उस तरीके से तो शायद खान साहब का इस्तकबाल ना करें जिस तरीके से जो है पहले इस्तकबाल किया था या खान साहब को उम्मीद थी। लोग मायूस हैं PTI से और सिर्फ चंद
وہ لوگ جنہوں نے کبھی بازار میں جا کر خرید و فروخت نہیں کی، جنہیں روزمرہ کی مشکلات اور تکالیف کا اندازہ نہیں ہے، وہ چند جو ہے وہ برگر اسٹرائپ فیملیز تو ضرور جو ہے نا عمران خان کے استقبال کے لیے آئیں گی۔ ان کے مطابق وہ لوگ جلسے میں آئیں گے جن کا بازار سے واسطہ نہیں پڑتا یا جنہوں نے کبھی بازار میں خریداری نہیں کی، وہی فیملیز اور وہی لوگ جلسے کے اندر شریک ہوں گے، جبکہ عام آدمی ان کے نزدیک جلسے میں ان کو جاتا ہوا نہیں دکھائی دے گا۔ جنید انور، شکریہ، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ اب آپ کو بتائیں تحریک انصاف کا 20 مئی کو ملتان میں پاور شو جلسے کے لیے 10,000 پارٹی پرچم تیار کرائے جا رہے ہیں۔ جلسہ کمیٹی کی جانب سے جلد انتظامات کو حتمی شکل دی جائے گی۔ مزید بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے امجد ملک نے۔ جی امجد، بتائیے کہاں تک پہنچی ہیں تیاریاں؟ جی بالکل، 20 مئی کو پاکستان تحریک انصاف ملتان میں جلسہ کرنے جا رہی ہے، اور جلسے کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ملتان کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کے عہدیداران ہیں، اراکین اسمبلی ہیں، خاصا ہمیں متحرک نظر آ رہے ہیں، اور اس حوالے سے جلسے کی کمیٹی بھی تشکیل دی گئی تھی، اور جو 10,000 سے زائد جو ہیں پارٹی پرچم تیار کرنے کا آرڈر جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں کہ جب عمران خان جلسہ کر رہے ہوں گے تو جتنے بھی کارکنان ہیں، عہدیداران ہیں، وہ تمام پرچم جلسہ گاہ میں لے کر جائیں گے۔ اور دوسری جانب جو ہے چندہ اکٹھا کرنے کی بھی تجویز دی گئی تھی، جو کمیٹی بنائی گئی ہے جلسے کی، اس میں اس وقت جو چیزیں سامنے آئی ہیں پارٹی ذرائع کے مطابق جو عہدیداران ہیں پاکستان تحریک انصاف ملتان کے، وہ 5 لاکھ روپے فی پرسن جو ہے وہ اس کے اندر جمع کرائے گا، اور اس کے علاوہ جو اراکین اسمبلی ہیں وہ 2 لاکھ روپے جو ہے جمع کرائیں گے۔ اگر جو مین بڑے عہدیداران ہیں وہ اس سے زائد رقم بھی دے سکتے ہیں۔ ٹوٹل اگر بات کرتے اس جلسے کے حوالے سے، جو تمام تر انتظامات کے حوالے سے، جو پنڈال سجایا جائے گا، اس میں کرسیاں لگائی جائیں گی، ٹوٹل تخمینہ لاگت جو ہے وہ 1.5 کروڑ روپے جو ہے وہ لگائی گئی ہے، اور اس حوالے سے انتظامات کو حتمی شکل بھی دی جا رہی ہے۔ اور دوسری جانب بات کرتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جو وفود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ ضلع انتظامیہ سے ملاقات بھی کر رہے ہیں۔ ڈیڈ لاک جو ہے ابھی تک سٹل باقی ہے کہ جلسہ کہاں کرنا ہے۔ ضلع انتظامیہ جو ہے وہ ان کو ابھی تک اجازت نہیں دے رہی کہ ملتان قلعہ کونا قاسم باغ میں یہ جلسہ کیا جائے، مگر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بضد ہے کہ ملتان کے یہ وسط میں ملتان قلعہ کونا قاسم باغ ہے، جہاں پہ ماضی میں بھی بہت بڑے تاریخ ساز جلسے ہوئے، اب بھی یہ جلسہ جو ہے عمران خان کا یہیں پہ کرنے کے لیے جو تیاریاں ہیں وہ ان کو حتمی شکل دے رہی ہے۔ اس حوالے سے کل بھی ہم نے دیکھا کچھ اراکین اسمبلی اور جو پاکستان تحریک انصاف کے عہدیداران ہیں، انہوں نے ملتان قلعہ کونا قاسم باغ کا وزٹ بھی کیا۔ بہرحال جو اس وقت چندے کی صورتحال ہے، تمام پارٹی عہدیداران جو اراکین اسمبلی ہیں وہ پیسے کی جو قلعہ کونا قاسم باغ کا وزٹ کیا۔ امجد ملک، شکریہ، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ چوک سرور شہید لیڈی کانسٹیبل مہوش خان کو ٹک ٹاک بنانا مہنگا پڑ گیا۔ ڈی پی او مظفر گڑھ کا نوٹس کانسٹیبل کو کلوز ٹو لائن کر دیا۔ مہوش خان تھانہ چوک سرور شہید میں تعینات تھی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، چوک سرور شہید لیڈی کانسٹیبل مہوش خان کو ٹک ٹاک بنانا مہنگا پڑ گیا۔ ڈی پی او مظفر گڑھ کا نوٹس کانسٹیبل کو کلوز ٹو لائن کر دیا۔ مہوش خان تھانہ چوک سرور شہید میں تعینات تھی۔ ملتان میں ریسکیو 1122 نے رواں سال کے دوران ٹریفک حادثات کی تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ تفصیلات کیا ہیں جانتے ہیں یاسر مجید سے۔ جی یاسر، بتائیے۔ جی، ریسکیو 1122 کی جانب سے سال 2021 کے پہلے 5.5 ماہ کے دوران ملتان شہر اور گرد و نواح میں ہونے والے ٹریفک حادثات کی تفصیلی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ ریسکیو حکام کے مطابق مجموعی طور پر 9901 حادثات رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں 10,429 افراد زخمی جبکہ 67 افراد جان بحق ہو چکی ہے سال 2022 کے دوران۔ ان حادثات میں جو مرد زخمی ہوئے ہیں وہ 8626 ہیں جبکہ خواتین 1803 ہیں، اور 971 راہگیر ہیں جن کو سڑک کے ساتھ چلتے ہوئے اچانک کسی گاڑی نے یا موٹر سائیکل سوار نے ٹکر ماری ہے۔ اسی طرح سے اگر بات کریں کہ موٹر سائیکل کے حادثات کی، تو موٹر سائیکل کے حادثات سب سے زیادہ ہیں۔ 9426 حادثات ریسکیو 1122 کو اس سال کے دوران رپورٹ ہوئے ہیں۔ 756 کار کے حادثات ہیں۔ ٹرک کے 193 حادثات رپورٹ ہوئے، جبکہ رکشہ کے 631 حادثات اس سال کے دوران ریسکیو 1122 کے کنٹرول روم میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ اگر زخمیوں کے حوالے سے بات کی جائے تو ریسکیو اعداد و شمار کے مطابق زیادہ تر زخمیوں کی جو تعداد ہے وہ ان کی عمر 20 سے 40 سال کے درمیان ہے، اور اوور سپیڈ کے باعث اس سال کے دوران تقریباً 1527 حادثات، جبکہ لاپرواہی سے 3769 اور یو ٹرن جو بہت بڑا ایشو ہے ملتان کا، اس کی وجہ سے 426 حادثات اس سال کے دوران رپورٹ ہوئے ہیں۔
ये भी रेस्क्यू 1122 के अदाद-ओ-शुमार में सामने आया है कि जो लोग हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं उनमें तकरीबन 799 यानी 800 के करीब ऐसे अफराद जख्मी हुए हैं जिनको हेड इंजरी का शिकार हुए और हेलमेट ना इस्तेमाल करने की वजह से ये हादसा उनके साथ पेश आए और वो जख्मी हुए हैं। इसी तरह से टायर ब्रस्ट होने के 92 हादसा इस साल के दौरान रिपोर्ट हुए हैं। रेस्क्यू 1122 की जानिब से शहरियों को हिदायत की जा रही है कि चूँकि लापरवाही और तेज़ रफ्तारी एक बहुत बड़ी वजह है इन हादसा की, तो शहरी एहतियात के साथ ड्राइविंग करें और शहरी एहतियात के साथ ड्राइविंग करें। यासिर मजीद शुक्रिया, आप हमें आगाह करे थे। अब आपको बताएं, लिया में मुमकिन सैलाब के पेश नज़र ज़िला इंतजामिया के इकदाम जारी। डिप्टी कमिश्नर लिया का दरियाए सिंध के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने मौजा शाहवाला, बकरी अहमद खान हिफाजती बंद का दौरा किया। डीसी ने हिफाजती बंदों का जायजा लिया और महकमा अनहार की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। ज़िला इंतजामिया दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है, ऐसा कहना था डीसी का। मुल्तान में शहरियों ने संडे को फंडे बनाने के लिए नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर लिया। शहरी मजे मजे के नाश्तों से लुत्फानंदोज होने लगे हैं। मजीद जानते हैं सुहेब गुरबानी से। जी सुहेब। जी बिल्कुल, आज हम नाश्ता पॉइंट पर मौजूद हैं। शहर औलिया के पास से नाश्ता जो है भरपूर करते हैं और अच्छा नाश्ता होता है। मगज़, निहारी, पाए और चिकन कोरमा और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है नाश्ते में सौगात यहाँ पे खाई जाती हैं और शहरी बड़े शौक़ से खाते हैं। हम शहरियों से बात करेंगे। बड़े मज़े से जो है एंजॉय किया जा रहा है नाश्ता। इतवार वाले दिन, छुट्टी वाले दिन जो है छुट्टी वाले दिन नाश्ते को एंजॉय करते हैं। क्या कहेंगे, छुट्टी वाले दिन यहीं से करने आते हैं, अब होटलों से करने आते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, हम छुट्टी वाले दिन ख़ास तौर पे इसी होटल अलकमर चिकन ब्रोस्ट पे आते हैं स्पेशली नाश्ता करने। ये हमारे चाचू हैं, वो भी चाचू हैं, चौक सरवर शहीद से इनको आज दावत दी है हमने यहाँ आने की, भाई चले हम इकट्ठे बैठ के नाश्ता करें। इधर ख़ास तौर पे जो मगज़ बना है वो तो लाजवाब ही है। पावे, मगज़, हलीम, निहारी, हर चीज़ ही बहुत लाजवाब है माशाल्लाह, और इनकी जो सर्विस वगैरह है वो भी अच्छी है। अच्छा, आप बताइएगा क्या मंगाया आज? पाए मंगाए, हलीम और निहारी। पाए मंगाए हुए हैं, हलीम और निहारी मंगाई हुई है और बड़ी तारीफ़ें की जा रही हैं। चौक सरवर शहीद से यहाँ पे दोस्तों को दावत दी गई है खाने के लिए। जो है शहरी यहाँ पे चौक सरवर शहीद से नाश्ता करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। ख़ास तौर पे हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं। सर बताइएगा, आप नाश्ते में क्या खासियत है कि लोग दूर दूर से आए? सर हमारे पास चिकन निहारी, बीफ निहारी, मगज़ निहारी, नली निहारी और स्पेशल निहारी, दलीम होता है और हमारी पुरानी दुकान है और कलई के बर्तन में इस्तेमाल करते हैं जो आजकल कोई भी नहीं कर रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह आला मसाला जात, ओरिजिनल अच्छा गोश्त, अच्छे पाए और वैरायटी इस्तेमाल करते हैं। इतवार वाले दिन ज़्यादा होता है रश? हाँ जी, इतवार वाले दिन दोस्तों के साथ आते हैं, फैमिली के साथ आते हैं, इंजॉय करते हैं हमारे पास और इंजॉय करके जाते हैं। लोग नाश्ते को एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ और दूर दराज से जो है लोग यहाँ पे नाश्ता करने के लिए आए हैं। मुल्तान का नाश्ता मशहूर सौगात जो है मुल्तान की निहारी बड़ी अच्छी बनती है और उसके साथ साथ मगज़ है, सिरप है, निहारी बहुत अच्छी बनती है। सुहेब गुरबानी शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। मुल्तान में शदीद गर्मी की लहर, शहरियों ने गर्मी का तोड़ ढूंढ लिया। मशरूबात की दुकानों पर शहरियों का रश, किसी ने पी बादामों की ठंडी सरदाई तो कोई शरबत संदल पीकर गर्मी दूर भगाता रहा। मुल्तान शहर में पड़ने वाली गर्मी अच्छों के पसीने निकाल देती है और इस गर्मी से बचने के लिए आवाम कौन से मशरूबात इस्तेमाल करती है, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। शहर औलिया में गर्मी का मुल्तानियों ने निकाल लिया तोड़। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही मशरूबात की दुकानों पर शहरियों का रश लग गया। किसी ने पी बादाम की सरदाई तो कोई संदल के शरबत और फालसे का जूस पीकर महजूज हुआ। बादाम, इलायची, काली मिर्च, चार मगज़, गुलाब के फूल, जामे शीरी, अच्छा शरबत हम बनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। गर्मी भी बहुत है। संदल, रूह अफ़ज़ा, बादामों वाला, शक्कर वाला, आलू बुखारा इमली और फालशा, ये दो वैरायटियाँ चलती हैं। आलू बुखारा इमली चलता है, फालशा चलता है इस मौसम में, बादामों वाला भी चलता है, संदल भी। हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है। ज़्यादा चलता है आलू बुखारा इमली और फालशा। इमली, आलू बुखारे वाला शरबत, शरबत बादाम, शरबत रूह बहार, शरबत संदल गर्मी से सताए शहरियों को अपनी जानिब खींच लाते हैं। शहरियों का कहना था कि शदीद गर्मी में यही मशरूबात पीकर गर्मी का तोड़ निकालते हैं। गरीब आदमी का जो है ना जीना हराम है, इतनी गर्मी है बड़ी सख्त, ये पानी पीने से कोई सुकून आ जाता है। माशाल्लाह ये अच्छा बनाते हैं शरबत। गर्मी का तोड़ कैसे, कभी गन्ने का जूस पी लिया, कभी इधर आके इनसे भाई से जूस पी लेते हैं और क्या है, गोदामों में भागना पड़ता है
जिसकी वजह से गर्मी लग जाती है। शहरियों का मजीद कहना था कि ठंडे और मीठे मशरूबात पीकर गर्मी की शिद्दत कम और दिल को भी सुकून मिलता है। मुल्तान शहर में पड़ने वाली गर्मी से बचने के लिए शहरी अपना रुख ठंडे मशरूबात की दुकानों और रेहड़ियों की जानिब कर रहे हैं, जिनको पीकर मन ठंडा ठार हो जाता है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, रोही, मुल्तान। रंगपुर में गर्मी की शिद्दत में इजाफे से शहरियों ने ठंडे मशरूबात के स्टॉल्स का रुख कर लिया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना परवेज अख्तर से। जी परवेज। हाँ जी बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों ने मशरूबात के स्टॉल्स का जो है वो रुख कर लिया है। यहाँ पर जो है डेरा गाजी खां की मशहूर सौगात है घोटा, जो कि पिस्ता, बादाम, खिशखास और अदर इंग्रेडिएंट्स जो है वो शामिल करके बनाई जाती है, जो कि गर्मी का तोड़ समझा जाता है। शहरी जो है वो यहाँ गर्मी के मौसम में जो है घोटा पीने के लिए आए हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि घोटा पीने के लिए आए हैं, गर्मी भी बड़ी हुई है, क्या कहेंगे सर? जी रंगपुर में बहुत गर्मी है, जिसका तोड़ जो है ये घोटा है। इससे पीने से गर्मी कम होती है और प्यास भी बुझ जाती है। ये डेरा गाजी खां का मशहूर ये सौगात है जो रंगपुर में लगी हुई है। जी दूसरे शहर से जानते सर, आप बताइएगा कि कहाँ से आए हैं, घोटा पी रहे हैं, गर्मी भी बड़ी हुई है, घोटा पीने से क्या गर्मी में की शिद्दत में कमी होती है, क्या कहें? जी सर, हम 15 किलोमीटर सफ़र करके आए हैं। इनका घोटा बहुत ज़बरदस्त होता है और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हम 15 किलोमीटर से इनका स्पेशल घोटा पीने के लिए आए हुए हैं। आज जी स्पेशल घोटा पीने के लिए जो है या दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं? दूर दराज से लोग आए हुए हैं। राना परवेज अख्तर, शुक्रिया, आप आगाह करे थे। कहरोल पक्का में भी शहरियों ने गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए मशरूबात की दुकानों का रुख कर लिया। मजीद जानते हैं आशिक हुसैन कुरैशी से। जी आशिक। जी बिल्कुल, सूरज ने जो है वो आग बरसाना शुरू कर दी है। गर्मी की शिद्दत में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त भी जो है 43 डिग्री जो है वो पारा पहुंच चुका है, जिसकी वजह से शहरी जो है गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए उन्होंने मशरूबात की दुकानों का रुख कर लिया। इस वक्त भी मैं एक शॉप पर मौजूद हूँ जहाँ पर शहरी जो है गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए गन्ने का रस जो है वो पी रहे हैं। बात करेंगे शहरी से। जी बताइएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है, किस तरह गर्मी की शिद्दत को कम किया जा रहा है? जी बिल्कुल, गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो इसलिए ठंडा पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए हमने जूस मतलब पीने आए हुए हैं। तो इससे जी मेरे साथ मजीद शायरी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी बताइएगा, गर्मी को किस तरह ख़त्म किया जा रहा है? गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है और कम से कम 45 डिग्री की रेट जो है ना गर्मी होती है, उसको ख़त्म करने के लिए, गर्मी को की जो है ना तपिश को ख़त्म करने के लिए हम जो है ना गन्ने का जूस इस्तेमाल करते हैं, ठंडे मशरूबात इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह से हमें जो है ना पुरसुकून मिलता है और गर्मी जो है ना कम होती है। जी जैसा कि शहरियों का कहना है कि टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा है, गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए उन्होंने हुसैन कुरैशी, शुक्रिया, आप हमें आगाह करे थे। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के वफ्द ने उम्रे की सादत हासिल कर ली। 130 रुकनी वफ्द मदीना मुनव्वरा में क़याम के बाद मक्का मुकरमा पहुंचा, जहां वफ्द ने उम्रे की अदायगी की। वफ्द में तजियाकार सुहेल वड़ाइस, सलीम बुखारी, मियाँ ताहिर, नवीद चौधरी, नसीम जहरा, आमिर मीर, जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर अहमद गाजी, खुरम कलीन, जहीर अहमद काहलों, खुरम शहजाद, मोहम्मद कामरान और दीगर शामिल हैं। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के वफ्द ने उमरा की सादत हासिल कर ली। 130 रुकनी वफ्द ने मदीना मुनव्वरा क़याम के बाद मक्का मुकरमा का रख्ते सफर बांधा। अराकीन ने मिकात से कबल एहराम बांधा और हदूद हरम में दाखिल हुए। वफ्द ने बैतुल्लाह का तवाफ किया। मकाम इब्राहिम पर नवाफिल अदा करने के बाद आबे जमजम पिया। वफ्द ने सफा और मरवा की सई की और बाल मुंडवाए। उमरा की सादत हासिल करने के बाद एहराम खोल दिए। वफ्द में ग्रुप एडिटर सिटी 42 नवीद चौधरी, डायरेक्टर न्यूज़ 24 मियाँ ताहिर, डायरेक्टर न्यूज़ 24 डिजिटल मीडिया सलीम बुखारी, डायरेक्टर प्रोग्रामिंग खुरम कलीम और सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइस शामिल हैं। कंट्रोलर न्यूज़ हमीद नकीबी, जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर अहमद गाजी, सीनियर एंकर रेहान तारिक और आउटपुट हेड सिटी 42 अब्दुल रशीद भी वक्त का हिस्सा है। इनपुट हेड सिटी 42 जैनुल आबदीन, सुहेब अलवी, यूसुफ अफसर, शहजाद जैदी, अली रामे, राव दिलशाद, शाहिद सिपरा, नईम गिलानी और मोहम्मद काशिफ भी शामिल हैं। हसन खालिद न्यूज़ प्रोडक्शन हेड, ओवैस शेख, ब्यूरो चीफ सिटी 41 फैसलाबाद जफर डोगर, ब्यूरो चीफ टोबा मुबशिर नकवी, ब्यूरो चीफ चिन्योट वकार घुमन भी शामिल हैं। सीनियर रिपोर्टर अजादार सैयद, जहांगीर अशरफ, रमजान मिर्जा, शहराज भट्ट और अब्दुल रहमान गुज्जर उमरा की अदायगी करने वालों में शामिल हैं। जका घुमन, सैयद सदाकत शाह, जहीर कहलू, खुरम शहजाद, मोहम्मद कामरान, मोहसिन अली, आतिफ शाह, सादत मेहंदी, इरफान
मलिक, दुरे नयाब, सऊद बट और उस्मान खान भी उम्रा अदायगी के लिए हिजाज मुकद्दस गए हैं। ताहिर खान, ज़ीशान नज़ीर, असद नदीम, मंसूर भट्टी, मलिक अशरफ, जहांज़ेब खान, वसीम निसार और जाफर भट्टी सिटी न्यूज़ नेटवर्क के वफ्द में शामिल हैं। इमरान सदीकी, अली अब्बास, जमील अहमद और राना अयास भी शामिल हैं। हसन बिलाल, मोहम्मद रुखसार, अदनान अली, अली साही, सैयद अख्तर अली, आज़ाद नोहरियो और जहीर वड़ाइश भी वफ्द का हिस्सा हैं। अब तक के लिए इतना ही।